गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुरमूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुरवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। शांति शांति शांति। श्रुति कौन है? अच्छा, हमें अपने मन पर नियंत्रण रखना आना चाहिए, परंतु मैं यह जानना चाहती हूँ कि वो मैं कौन है जो मन पर नियंत्रण पाना चाहता है। कहाँ से आई हैं आप? कहाँ? सोलन से। अरे वाह, क्या बात है। बैठो। श्रुति, जब शीशे पे अपने आप को देखती हो तो अपनी शक्ल दिखती है ना शीशे पर? बिल्कुल ऐसी दिखती जैसी हो या कुछ और? बिल्कुल वैसी। पर शीशे में दिख रही शक्ल तुम नहीं हो कि तुम हो? तुम हो भी, पर तुम नहीं भी हो। That which gets reflected in the mirror, your own face, is not your real face, but it's a reflected face. Are you getting this much? That which gets reflected in the mirror, now if Shruti sees in the mirror, then Shruti will see her face. So there are two Shruti, one outside, one in the being reflected in the mirror. But that which is getting reflected in the mirror is not the real Shruti, correct? So one is original, one is reflected. Similarly, we have two I. One is the real one is which is reflected in the mirror of the mind. Can you see your own face in this mirror, Shruti? Now, can you see it? Why? Direction different, right? So the mirror has to be very close. Okay, come here. Let's play a game. ये है श्रुति सोलन से। हैं, किस क्लास में हैं? ओ नाइस, क्या कर रहे हैं? गुड, तुम भी ये कर रही हूँ। थोड़ा और पास आओ। अब शक्ल दिख रही है? हैं? अब शक्ल दिख रही है? तो शक्ल कब दिखेगी? ना दूर ना। If mirror is too far, reflection will not happen. If it is too close, the reflection will not happen. बहुत पास शीशा हो जाए, एकदम आंख से चिपका दे तो भी नहीं, और बहुत दूर कर देंगे तो भी नहीं। तो एक डिस्टेंस होना चाहिए। अब दिख रही? चेक कर ले सब, बाल वाल ठीक है तुम्हारे? So take this mirror as the mind, and then you are being reflected in the mirror of the mind. This reflected I is the false I, it's not the true I. So mind is closest to me. Me, when I say me, then it's not your this body. Okay, now you sit. शीशा बहुत दूर होगा तो भी शक्ल नहीं दिखेगी, शीशा बहुत पास हो तो भी एकदम आंख से चिपका दें तो भी नहीं दिखे। तो एक सही दूरी होनी चाहिए, फिर आपको शक्ल दिखेगी, राइट?
Similarly, the original self, the real self, meaning you, are different from this reflected self. When you say, my name is Shruti, I'm coming from Solan, which is in Himachal Pradesh, you are talking about the body. But you are not body. So if you are not body, then the sense of I-ness which you have with this body is not true, is actually an illusion. So when I say you need to manage your mind, obviously the mind is different from you. That's why you can manage it. बात समझ रहे हो? मन के शीशे में जो मैं रिफ्लेक्टेड हुई, वो है हमारी नकली मैं. अब क्या उम्र है आपकी? या हाँ 15 नहीं, अगले आगे जो बैठे हैं 14. नाम? कहाँ से? मुंबई. आप? ओ वाह, जय श्री राम. अरे बाबा. आप? मेहर लुधियाना. आप इधर ऑन द कॉर्नर? हाँ हाँ, तुम सबसे आगे. रुद्र. आगे? कहाँ से? पलवल से. अब इनकी शक्ल, इनका शरीर, इनकी उम्र और आप सबकी शक्ल, सबकी उम्र बिल्कुल अलग, राइट? अच्छा, अगर मैं पूछूं आपका मन कैसे दिखता है, मन की क्या उम्र है? What is age of your mind? Your body has an age, 14, 15, 16, whatever. But if I ask you, what is age of your mind? Do you have any answers? No. Now you say, I am good looking, I am not, I am tall, I am not, I am black, I am not, I am fair, I am not, right? I am mustache, I am not, right? But these attributes are of this body, not of the mind, and definitely not of you. Are you getting this much? Now you are not aware of what is age or shape of the mind. And please know this, you are not mind too. Mind is different from you. But my reflection in the mind creates a reflected I, which we say, when we say, I'm very unhappy, I'm very happy, I'm lost, I'm very nice, I'm not nice, I'm good, I'm not good. So good or bad or nice or not nice is your mind, not you. अच्छा, आपसे पूछते हो, तुम्हारा शरीर नाइस है कि नॉट नाइस है? मतलब जस्ट रैंडम जवाब दे दो. है, देखो तो जरा. हाय हाय. And it's a good thing you feel like that. One, this body is creation of Almighty. Almighty is the bestest of best. So is our body. If a painter is great, so is his or her creation. So परमात्मा अगर सबसे ज्यादा सुंदर, सत्यम शिवम, सत्यम शिवम, तो हम भी सुंदरम. अभी देखो आप सबका सरनेम कुछ कुछ, कोई मेहता है, कोई अरोड़ा है, कोई भाटिया है, कोई है, कोई है, कोई आणी है, कोई सिंधी है. आपके सरनेम से आपकी जाति, आपकी गोत्र का पता चलता है. पर अगर हम सब परमात्मा से हैं तो माई बाप तो वही है. तो अगर वो सुंदर है तो हम अपना सरनेम सुंदर भी तो रख ही सकते हैं. तो रुद्र सुंदर, मिहिर सुंदर, करण सुंदर, कुणाल सुंदर, आरव सुंदर. वो घर में जाके पप्पा ने कहना, ये क्या हो गया? ये तेरा सरनेम कैसे बदल गया?
मेरे नाम के पीछे हरि है। अब जिस घर में पैदा हुए थे उनका तो ये सरनेम नहीं था, लेकिन मैं थोड़ा सा और शरीर से आपसे छोटी थी, जब ये सुना परमात्मा ही हमारे माता पिता है, तो जैसा वो वैसे हम। तो अगर वो हरि है तो हम हरि। तो फिर उस दिन हमने अपने नाम के आगे पीछे जो सरनेम था वो काटा और उस पर लिख दिया हरि। हमारा रिश्ता परमात्मा से है। बाकी और सब रिश्ते तो बनते बिगड़ते रहते हैं, वो चले नहीं चले भी दोनों। अब हर जन्म में एक अलग शरीर था तो अलग नाम, अलग पेरेंट्स, अलग फैमिली थी। इस बार कुछ अलग है। ये भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन असल माता पिता तो परमात्मा ही है और कोई हो ही नहीं सकता। ये भी याद रखना, ये वाले माता पिता में बहुत गुण हो सकते हैं पर कभी कभी कुछ दोष भी हो सकते हैं। जिसे मैं अभी एक पत्र पढ़ रही थी, लड़की ने लिखा है मुझे, उसके माता पिता का डाइवोर्स हो गया। कुछ समय पिता के पास रही, फिर वो भाग के वहां से माँ के पास चली गई। माँ के पास गई तो माँ को शायद जाने क्यों आपस में बनी नहीं, पसंद नहीं। अब वो बेटी लिखती है कि मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती और मैं फैमिली को तरसती हूं। बहुत पर्सनल विषय है इसलिए मैं उसका नाम नहीं लूंगी, लेकिन उसको ये उत्तर दे रही हूं। ये माता पिता तो वैसे भी नकली थे। हाँ, ये भी नकली हैं, असली नहीं है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो परमात्मा मेरे माता पिता और सारा संसार उसी का, तो सारा संसार मेरा परिवार हो गया। वो एक माता, वो एक पिता, वो दो भाई बहन वो प्यार नहीं करते, सो व्हाट। नकली छोड़ो, असली पकड़ो। नकली में 100 गुण दोष, परमात्मा में एक भी नहीं। और हम अगर उसके हैं और वो हमारे हैं तो चिंता का कोई विषय नहीं। तो जो हमारे असल पिता माँ हैं हम उनको पहचानते भी नहीं, जानते भी नहीं, और ये जो नकली वाले इनके पीछे कभी कभी दुखी हो जाते हैं, हमें प्यार नहीं करते, हमें प्यार नहीं करते। हमें ये उसका दुर्भाग्य अगर वो अपनी पुत्री से प्यार नहीं कर पा रही है, ये उस माता का दुर्भाग्य कि वो अपनी बेटी से प्यार नहीं कर पा रही। पर आप यहां आए हो, हाँ, हमारे पास आए हो तो कुछ समझ हमसे लो, कुछ ज्ञान हमसे लो। कई बार कईयों को लगता है नहीं, जो दिखे, जो सिर में हाथ फेरे, है ना, वो माता पिता होते हैं। तो सत्संग बाद मुझे मिल लेना, मैं सिर में हाथ भी फेर दूंगी। और अगर कुछ दे तो वो माँ है तो हम कुछ दे भी देंगे। और खुशी गमी किसी से बांटनी है तो वो तो तुम पहले से मेरे से बांट रही हो। जिसने जन्म दिया वो उसको नहीं तुम बता रहे हो, तुम्हारे मन का दुख तुम मुझे बता रहे हो, तो फिर हम तुम्हारे ज्यादा करीब हो गए या वो? तो शास्त्र कहता है गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी सहोदरा, गुरुदेव स्वामी सहोदरा, गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी सहोदरा, गुरुदेव स्वामी सहोदरा। स्वामी मतलब मेरा मालिक, सहोदरा मतलब मेरा दोस्त, सखा, जो मेरा
फ्रेंड है, जो मेरा मित्र है, तो मेरा गुरु मेरा माँ है, मेरा गुरु मेरे पिता भी है, मेरा गुरु मेरा दोस्त भी है, मेरा गुरु मेरा मालिक भी है, मेरा गुरु मेरा सखा भी है। तो जिसको गुरु में माँ, पिता, सखा, स्वामी ये सारे भाव बन जाए तो वो अपने आप को अकेला कैसे देख सकता है? हाँ, क्यों देखे? तो भैया ये नकली माँ पिता के लिए क्या रोना? ये उनकी कमी कह लो, ये उनका दोष कह लो, लेकिन अच्छा ये रहेगा उनसे भी गुस्सा मत खाइए। लेट देम बी, इट्स ओके। प्रहलाद का पिता तो राक्षस था, है ना? कितना कष्ट दिया, उसको मारने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी प्रहलाद ने अपने पिता से द्वेष नहीं किया। जब हिरण्याक्ष उसको मारते तो प्रहलाद उस समय पर पीड़ित होते, लेकिन उनका जो दर्शन था उस दर्शन को देख करके वो बस नतमस्तक हो रहे थे। तो पॉइंट ये आता है कि ये शरीर हम नहीं है, ये मन हम नहीं है। इस मन में रिफ्लेक्टेड आय को हम मैं मान रहे हैं, और फिर जब मैं कहती हूँ मन को नियंत्रण करो, तो ये जो मन में रिफ्लेक्टेड है वही मैं, इस मन को नियंत्रित नहीं कर सकती है। जैसे कहा ना, शीशे में शक्ल देखने के लिए एक डिस्टेंस होना चाहिए, ऐसे अगर मन को नियंत्रण करना है तो मन से मेरा एक डिस्टेंस जो है, बनाना नहीं है, उस डिस्टेंस को समझना होगा और अपने वास्तविक स्वरूप को समझना होगा, और तभी हम इस मन को अपने नियंत्रण में कर सकते हैं।